Hello everyone, welcome to Super Kalam. I am your teacher and your mentor Arpita Sharma, and while taking the strategy class, I promised you all that we'll be dealing with ethics on a fundamental level in 4 classes. हो सकता है 5 classes भी हो जाएं, बट मैं कोशिश करूंगी कि फंडामेंटल्स एथिक्स के आपके स्ट्रांग हो जाएं. Ethics is a very scoring paper. Do you know that? I told you in the strategy class that it is divided into two parts, paper A and paper B, part A and part B. Why? Because part A deals with theory, the conceptual understanding what is ethics, what is corruption, what is coercion, what is persuasion, what is empathy, emotional intelligence, aptitude, attitude. And part B deals with case studies. और मैं आपको ethics में इतना strong कर दूंगी, इतना strong कि आप लोग खुद बोलोगे कि दिस इज समथिंग दैट इज डूएबल. जीएस पेपर 4 एक ऐसा पेपर है जो डूएबल भी है एंड ऐसा पेपर है जो हमें सोचने पे, बड़ा सोचने पे मजबूर करता है. इट डील्स विद प्रिंसिपल्स, मॉरल्स, वैल्यूज दैट वी आर टॉट सिंस द चाइल्डहुड. लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. एंड ऑल्सो आई विल शो यू द नोट्स. आप ये देख रहे हो सारे मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं. These mind maps, these flashcards, these will be given to you only on one condition. And the condition is if this video gets 100 comments, 100 comments, and this video crosses at least 3000 views, तब मैं आपको ये माइंड मैप्स, ये नोट्स जरूर प्रोवाइड करूंगी. अगर व्यूज 3000 भी नहीं तो 100 कमेंट्स तो मुझे चाहिए ही चाहिए. अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि इतने अच्छे से एथिक्स कोई नहीं पढ़ाएगा जितने अच्छे से पर्सनल लेवल पर जाकर हम ये एथिक्स आज पढ़ने वाले हैं. तो जब इतनी डीप मेहनत करने वाले हैं और इतनी डीप मेहनत की है नोट्स बनाने में आप लोगों के लिए, देन दिस क्लास डिजर्व्स 100 कमेंट्स, है ना? लेट्स स्टार्ट. When we talk about class 1, we'll be covering the important keywords today. In the strategy session, I told you really well कि पेपर 4 के सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ने वाले हैं. इन द सिलेबस फर्स्ट एस्पेक्ट इज द फोकसिंग ऑन कीवर्ड्स. सबसे पहले मैंने कीवर्ड्स आपको अंडरलाइन करवाए थे स्ट्रैटेजी क्लास में. इफ यू हैवंट वॉच दी स्ट्रैटेजी क्लास, द लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो स्ट्रैटेजी क्लास में ये सारे कीवर्ड्स मैंने अंडरलाइन करवाए थे फ्रॉम द सिलेबस. Once the keywords are prepared, then case studies on above issues, above keywords are asked. तो वो भी हम easily समझ पाएंगे. We'll be able to handle those case studies only if we are clear in our head what these terms and keywords mean. एंड आई विल ऑल्सो शो यू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. मैं आपको क्लास के बाद होमवर्क भी देने वाली हूँ, तो जरा वेट करना, क्लास को एंड तक देखना है अगर होमवर्क अच्छे से सॉल्व करना है तो. ठीक है? What are the keywords that we are going to study today? Ethics, what are values, what are morals, attitude, aptitude, difference between the two, integrity, impartiality, non-partition, objectivity, empathy. These are the most important keywords जो बार बार repeat होते हैं. Then there are other keywords also which are derived from them जो हम आने वाली classes में पढ़ने वाले हैं with examples. Okay? So let's start with what exactly is ethics. सबसे पहले समझते हैं कि why we have to make these kind of notes. Because between the two papers the time will be very less in the actual exam. तो आपको फ्लैश कार्ड्स, माइंड मैप्स रेडी रखने होंगे टू रिवाइज. ओके, दैट इज वाई द फ्लैश कार्ड्स आर इंपॉर्टेंट while you are studying ethics. Now when we talk about ethics, understand the meaning of ethics first. सबसे पहले मीनिंग समझते हैं कि एथिक्स का मतलब आखिर होता क्या है. Once you understand the meaning, then it becomes very easy to write examples. Ethics, integrity, aptitude basically examines the analytical ability of an aspirant, of a student. That is why it is important to study ethics first. Ethics का मतलब क्या होता है? These are those principles, these are those values which basically guide your actions. ये आपके actions को guide करते हैं. The decisions that you make them based on the ethics that you follow. And ethics can be, basically it is defined as the study of standards, what is right, what is wrong. It is based on moral philosophy, how to lead a good life, how to fulfill your rights and responsibilities. R square kar lo, rights and responsibilities. And hence ethics can be applied to different areas of life, whether it can be business, it can be your personal life also, it can be your student life also. So ethics means whenever you are taking any decision, लिख लो इस पॉइंट को, whenever you are taking any decision,
or you are making any action, what drives your decision and action, those values or those guidelines are known as ethics. जो भी आप फैसला लेते हो, जो भी आप एक्शन करते हो, किस बेसिस पे कर रहे हो, किस राइट और रॉन्ग प्रिंसिपल पे कर रहे हो, उसको हम एथिक्स बोलते हैं, उन गाइडलाइंस को हम एथिक्स बोलते हैं. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. दैट इज एथिक्स. सो सिंपली पुट, ये सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं विच आर प्लेस्ड ऑन द इंडिविजुअल बाय द सोसाइटी, which guides the behavior of the person. There is a very famous line or very famous shloka in Mahabharata. It is Atmanah Pratikulani Parisham na Samacharet. That means treat others as you would like to be treated. That derives the essence of ethics. अगर कोई आपसे पूछे ना what is the essence of ethics, for example in the syllabus itself you will see that essence की बात हो रही है. What is the essence of ethics? You can answer like this with this particular shloka. आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत. आप जैसे खुद को ट्रीट करना चाहोगे वैसे ही औरों को ट्रीट करो. जैसे आप खुद के साथ व्यवहार करोगे वैसे ही दूसरे के साथ व्यवहार करो. इफ यू डोंट वांट कि somebody else should cheat you, you should also not cheat the other person. अब मैं आपको यहाँ पर एक अच्छे, देखो, इन योर आंसर्स इन एथिक्स पेपर ना, द मोर रिलेटेबल एग्जाम्पल्स यू विल गिव, द मोर मार्क्स यू विल फेच. सिर्फ अगर थ्योरेटिकली रट्टा लगा के चीजें लिखाओगे तो मार्क्स नहीं आएंगे. यहाँ पर यू हैव टू गिव एग्जाम्पल्स, सो यू कैन गिव मल्टीपल एग्जाम्पल्स हियर. इफ यू डोंट वांट समवन टू पुट यू डाउन morally, or if you don't want someone to make fun of you, अगर आप मोटे हो या पतले हो, आप नहीं चाहते कोई आपको बॉडी शेम करे, आप भी बॉडी शेम मत करो दूसरे को. लोगों को इस तरीके से ट्रीट करो जैसे आप खुद को ट्रीट करवाना चाहोगे. अगर खुद इज्जत चाहिए तो दूसरों को भी इज्जत देनी पड़ती है. इट इज सेड ना दैट इफ यू पॉइंट अ फिंगर एट समवन देन द रेस्ट ऑफ द फिंगर्स आर पॉइंटेड बैक एट यू एज वेल, राइट? तो इसीलिए यू शुड नॉट फिंगर पॉइंट समवन. आप किसी को करेक्ट करो, but unhealthy criticism is not allowed, body shaming is not allowed. You can give multiple examples for this as well. अलग अलग examples दे सकते हो. So in totality, what is ethics? Beliefs about what is morally correct or acceptable. उचित अनुचित का विचार ही ethics कहलाता है. ये पॉइंट याद हो गया सभी को? समझ आ गया? ethics का मीनिंग समझ आना चाहिए. Now some people say ethics is morality. No, ethics is not morality. ये morality नहीं है. Basically it depends on the person's perspective. What is right for you may not be right for the other person. मान लो, I'll give you another example. See, these examples are very important. If you quote such examples from your day to day life, it will be good. I had a friend. That friend had a very good public image, was a very good person, but that friend indulges into alcohol. Okay, अब उस इंसान के लिए अल्कोहल कंज्यूम करना इज ओके, वंस इन अ वाइल इट इज ओके, बट फॉर मी कंज्यूमिंग इवन वन ड्रॉप ऑफ अल्कोहल इज रॉन्ग. नाउ माई एथिक्स डू नॉट अलाउ मी टू कंज्यूम अल्कोहल, बट दैट पर्सन सेज कि भाई अल्कोहल वंस इन अ वाइल ओकेशनली इज गुड, कुछ नहीं होता, ओकेशनली चलता है. तो हमारे पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. राइट एंड रॉन्ग की डेफिनेशन जो है ना, वो कोई क्लियर कट नहीं दी गई है. देयर इज, यू कैन नॉट से दिस इज राइट एंड दैट इज रॉन्ग. some people are vegetarian, some people are not non-vegetarian, some people write with gel pen, some people write with ball pen, है ना. It depends on the person's perspective, the way the person is brought up, the way the person has lived his life or her life. So ethos means character. ethics का मतलब क्या होता है? morality नहीं होता, character होता है. ये लोगों पे depend करता है, ठीक है. लोग, it differs people to people. All right, so that is ethics. तो इसको ना हम क्या कहेंगे कि you should never be rigid when you are studying ethics. आप किसी एक चीज को सही मान के बैठ गए, उस पर ही अटके हुए, दैट इज नॉट एथिक्स. यू शुड बी फ्लेक्सिबल व्हेन यू आर स्टडिंग एथिक्स, बिकॉज एथिक्स वेरीज. राइट एंड रॉन्ग की डेफिनेशन वेरीज. आपके लिए जो सही है ठीक है उसको मानो, बट यू कैन नॉट से कि सामने वाले का पर्सपेक्टिव ऑल टुगेदर गलत ही है. यू कैन हैव डिबेट्स एंड डिस्कशंस ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक. दैट इज व्हाई डेमोक्रेसी इज देयर इन इंडिया, राइट? बट येस, फ्यू थिंग्स आर सच जो बिल्कुल ही गलत है, वो हमें समझना चाहिए. बट व्हेन इट कम्स टू एथिक्स, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन्स पर्सपेक्टिव. सो इस दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर कोट फिट्स वेल कि भाई आप कुछ भी करो लाइफ में, आपको अल्कोहल पीना है पी लो, आपको कहीं घूमने जाना है आप चले जाओ, आपको जो करना है करो, बट ट्रीट अदर पीपल एज यू विल विश टू बी ट्रीटेड योरसेल्फ.
that will help us to define correctly what is ethics and correctly what is right and wrong. ये quote बहुत important है. In your answers you can quote this. Now coming on to morality. अब ethics और ethics हमने समझ लिया. We understood what is ethics. What is morality? Ethics means when you are supporting your claim what is right and wrong. That is ethics. These are not values. This is not a religion. It is not a law. It is your perspective about what is right and wrong and then following it. But morality means what you do not want in life. That is morality. मेरे moral values मुझे situationship में enter करने के लिए मना करते हैं. There are some people who say I date to marry, है ना? So that is morality for me. मेरे moral values कहते हैं कि भाई मैं situationship में नहीं enter कर सकती, कि भाई फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है. आई एम टेकिंग एग्जांपल्स फ्रॉम द करंट जेनजी जनरेशन. वाई? बिकॉज मोर रिलेटेबल हो जाएगा, है ना. इट इज मोर रिलेटेबल. इट इज हैपनिंग दीज डेज. फॉर एग्जाम्पल, अनदर इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, when I am teaching, I will not go against my moral values and teach you something which is not right, है ना. जस्ट बिकॉज मुझे कुछ अलग से बेचना है, मुझे अलग से कुछ करना है, अपना कोई बेनिफिट दिखना नहीं. जब मैं पढ़ाने आती हूँ तो सिर्फ मेरा फोकस होता है ज्ञान बांटना. जो मैंने अपने जीवन से आज तक सीखा है वो आपको बताना. वेन एवर आई एम टीचिंग, माई अटमोस्ट फोकस इज ऑन वट एवर आई हैव लर्नड इन लाइफ, शेयर दैट. जो भी मैंने सीखा है वो शेयर करो. Irrespective of whatever else is happening in life, when I am in the teaching mode, I do not think about anything else, just teaching. Just मेरा focus आपके feedback पे, आपके understanding पे रहता है, आपके questions पे रहता है. So morality means what I do not accept, that is my moral values. Moral values originate from customs, from tradition. जैसे situationship का example मैंने दिया. मेरा जो जिस परिवार में मैं बड़ी हुई हूँ, मैं इन सब terms में नहीं मानती. ठीक है. Then it varies from person to person. Again, same. Ethics भी varies from person to person. Morality also varies from person to person. Somebody else accepts the term situationship. Somebody else wants to explore. But मैं नहीं करना चाहती भाई वो चीज, है ना. So that is again morality. Somebody else, if he or she is teaching or if he or she is in the real estate business, वो सिर्फ business और पैसे पे focus कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, आप करो. बट वी हैव टू स्टिक टू आवर मोरल्स. जो हमारे मोरल्स हैं वो तो हम उस पर रुकेंगे ही, टिकेंगे. एंड बिटवीन द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू वी गेट रिस्पेक्ट. समझ रहे हो आप? दिस माइंड मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस वेन डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेयर एथिक्स एंड मोरालिटी मीट, वहां पर हमें रिस्पेक्ट मिलती है. एंड रिस्पेक्ट, एवरीबडी नीड्स वन थिंग इन लाइफ, रिस्पेक्ट. हर इंसान को रिस्पेक्ट ही चाहिए. ट्रस्ट मी. आप जो भी कर रहे हो ना लाइफ में, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और डूइंग अ जॉब, everything comes down to this one term, respect. हर चीज रिस्पेक्ट पे आकर ही रुकती है. We are doing anything that we are doing in life, it is based on respect only. Okay? तो इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया. आई होप आपने ये डायग्राम बना लिया होगा. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एसेंस. ठीक है, अभी हमने एथिक्स पढ़ लिया बहुत अच्छे से. हमने एथिक्स का मीनिंग भी समझ लिया. वी हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ एथिक्स. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द एसेंस. एसेंस का मतलब क्या होता है? You are a human being, you have a body, right? But the essence of being a human being lies in your aura, in the vibe that you carry, है ना. वही आपका essence है ना. आपकी inherent intrinsic value is essence. Similarly, in ethics, what is intrinsic to ethics becomes the essence of ethics. And what is intrinsic? Ultimate good. आप जो भी लाइफ में कर रहे हो वो अल्टीमेटली अपने भले के लिए या अपने फैमिली के लिए भले के लिए, सोसाइटी के भले के लिए कर रहे हो. देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पीपल. वन पर्सन हु डज एनीथिंग फॉर हिज ओन सेल्फ, अपने भले के लिए. द अदर पर्सन थिंक्स ऑफ हिज ओन फैमिली इज गुड. थर्ड काइंड ऑफ पर्सन पीपल आर दोज हु थिंक्स अबाउट द सोसाइटीज वेल बीइंग, है ना. तो ये तीन तरीके के लोग होते हैं. All these three people are following some or the other kind of ethics. So the intrinsic value of ethic means ultimate good. किसका ultimate good हो रहा है? वो आपका intrinsic essence होता है ethics का. And there is one question which is asked in the essence of ethics, which is what is right, what is fair or what is good. That is the universal law. जब भी आप समझने चाहोगे ना कि हर इंसान के एक्शन के पीछे का क्या मोटिव था, तो that comes down to, boils down to one fact: what is right, what is fair, what is good on an individual level, on a family level, on a societal level. That is the essence of ethics. And essence of ethics contains different kind of components.
Values, virtues, I call it V square. Duties, moral principles, DM. डायरेक्ट मैसेज जिसको कहते हैं, वी स्क्वायर डीएम. दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एसेंस ऑफ एथिक्स. प्लीज राइट इट डाउन. इसका एक शॉर्ट नोट बना लो. व्हाट आर योर वैल्यूज? आपका कोर बिलीफ. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू एग्जाम्पल. एवरी टॉपिक विल हैव एन एग्जाम्पल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. वैल्यूज का मतलब क्या हो जाएगा? किन कोर बिलीफ्स को लेकर मैं बड़ी हुई हूं. माई कोर बिलीफ इज ओनली थ्रू हार्ड वर्क यू कैन अचीव गुड थिंग्स इन ग्रेट थिंग्स इन लाइफ. इफ यू अप्लाई शॉर्टकट्स देन यू विल नेवर बी सक्सेसफुल. दिस इज माई कोर बिलीफ. इसलिए मैं सिर्फ मेहनत करने पे फोकस करती हूँ और किसी चीज पे नहीं. एंड मेहनत का बाय प्रोडक्ट होता है मनी. मेहनत का बाय प्रोडक्ट होता है रिस्पेक्ट. I do not focus, I've never focused in my life, entire life, on money or respect. I focused on my hard work. Because if I am hardworking, everything comes as a byproduct. ये चीजें तो बाय प्रोडक्ट होती ही होती हैं. इफ यू आर फोकसिंग ऑन योर एग्जाम, प्रीलिम्स पे फोकस कर रहे हो, तो क्लियरिंग प्रीलिम्स विल बी अ बाय प्रोडक्ट. If you're focusing on your mains, clearing mains will be a byproduct. If you're focusing on interview, clearing interview will be the byproduct. If you're focusing on just three, all these three, then becoming an IAS officer will be a byproduct. अगर आप आज ये क्लास देख रहे हो, if you're focusing in this class, then the byproduct would be you clearing mains and even the interview round. That would be the byproduct. That is my core belief. Hard work मेरा core belief है. आप comment section में बताना what is your core belief. And second core belief that I was brought up with was, my father used to tell me कि always remember Arpita that you have to be versatile. Versatile means बहुमुखी प्रतिभा वाला. अपने आप को लिमिट मत करो एक नीश के अंदर, अपने आप को एक्सपैंड करो. एंड दैट वाज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दैट आई लर्नड इन माय लाइफ. बहुमुखी प्रतिभा वाला, वर्सेटाइल. एक्सपैंड योरसेल्फ, लर्न थिंग्स. सीखो चीजें, एक जगह रुके मत रहो. दैट इज व्हाई आई स्टडी हिस्ट्री, आई स्टडी एथिक्स, आई स्टडी ज्योग्राफी. और आई डू नॉट स्टडी ऑल दीज सब्जेक्ट्स जस्ट टू टीच यू. आई स्टडी देम फॉर माई ओन सेल्फ, जस्ट टू इनहांस माई लर्निंग, एक्सपैंड माई सेल्फ. एक ही लाइफ है ना, तो ये मेरा कोर बिलीफ है. वी हैव ओनली वन लाइफ, व्हाई नॉट लर्न एवरीथिंग, एक्सपैंड. एक्सपेंशन में, हार्ड वर्क में मैं बिलीव करती हूँ. आपको बताना है व्हाट इज योर कोर बिलीफ. देन वर्च्यूज. व्हाट आर वर्च्यूज? Your positive characteristics, your traits, your qualities that make you a positive and high vibrant person are your virtues in life. For example, for me, my virtue is I always speak the truth. मैं हमेशा सच बोलने की कोशिश करती हूँ. ऐसा नहीं मैं झूठ नहीं बोलती. कभी कभी डांट ना पड़े मम्मी से तो झूठ भी बोल देती हूँ, राइट. बट इतने खतरनाक झूठ नहीं होते कि भाई किसी की लाइफ खराब हो रही है, ऐसा नहीं होता. My lies are limited to the point that my mummy or my mother is not, does not scold me to that extent. For example, if I haven't if I haven't hydrated myself enough and my mummy is or my mother is getting angry, I'll just tell her a lie. अरे मम्मी, I have hydrated myself properly, मैंने 4 ग्लास पानी पी लिया. ठीक है, कभी कभी ऐसे हो जाता है, but normally I do not lie. That is one of my virtues that I follow. And secondly, whenever I take any decision, I consider two aspects. Is this decision dharmic or adharmic? That means if it is morally right or wrong. And based on that, I take my decisions in life. So that is my virtue. You will tell me what is your virtue. भाई comment करना है आप लोगों को. ऐसा नहीं है कि I am just teaching, I am having high viral fever right now. And in that fever, I am teaching you. So I want you, all of you, to at least comment whatever I am asking. Duties. Next component is duties. Duties means duties towards your own self. If you have taken the decision of giving this exam, that you have a duty towards your own self, responsibility towards your own self, that you need to study. Duty towards the society. You are a citizen of this nation. आपकी ड्यूटी बनती है. DPSPs पढ़ा है ना हम लोगों ने, समाज के प्रति. And moral principles. I told you what are moral values, moral principles. These are guidelines, basically what is right or wrong. इन दोनों के बीच में झूल कर जब आप decision लेते हो, that becomes your moral principles. So you will give me one example each of what are your values, virtues, duties and moral principles in the comment section. ठीक है? Coming on to the next important part of ethics, which is the branches of ethics. देखो ethics की ना अलग अलग branches होती हैं. What are the different branches of ethics? Let us understand that. We have normative branch, meta branch and applied branch. What exactly is normative ethics? Normative ethics basically means moral philosophy.
It is concerned with what is morally right, what is morally wrong. जो भी आपके मॉरल वैल्यूज है ना, जीवन को कैसे जीना है, वो नॉर्मेटिव एथिक्स के अंदर आता है. दैट कम्स अंडर नॉर्मेटिव एथिक्स. व्हाट इज योर क्राइटेरिया of identifying what is right and what is wrong, and it is further divided into three types: deontological ethics, consequentialism ethics and virtue. बेसिकली कॉन्सिक्वेंशलिज्म एथिक्स, जो कि नॉर्मेटिव एथिक्स का ही ब्रांच है, ये आपके ओवरऑल हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है. मतलब वॉट एवर एक्शंस यू आर टेकिंग, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट, एंड द कॉन्सिक्वेंस शुड बी यू बिकमिंग हैप्पी. दैट इज कॉन्सिक्वेंशलिज्म. डिओंटोलॉजिकल एथिक्स का मतलब क्या होता है? एक्शंस आर मेंटली राइट इफ दे आर डन आउट ऑफ ड्यूटी. तो हियर धर्म पर फोकस वुड बी देयर. मतलब वॉट एवर यू आर डूइंग, यू आर नॉट डूइंग इट टू मेक योर सेल्फ हैप्पी अल्टीमेटली. उसके बारे में तो आप सोचोगे भी नहीं. यू विल नॉट थिंक अबाउट द एंड रिजल्ट. यू विल थिंक वॉट एवर आई एम डूइंग, इज इट according to my dharma, according to my duty, yes or no. So deontological means you are keeping the core focus should be on your duty. Consequentialism ethic means your core focus should be on you becoming happy. And virtue means your core focus should be whatever action you are taking, it should reflect your good character. आपका अच्छा कैरेक्टर, आपका अच्छे ट्रेड्स को रिफ्लेक्ट करे आपके एक्शन, वो एक्शन आप लोगे. तो ये तीन चीजें लिख लो फटाफट से, प्लीज राइट इट डाउन. Then we have meta ethics. What exactly? Now in this case, na, deontological ethics, a very good example is Yudhishthir. If you have studied Mahabharata, तो you will see that there was a yaksh. युधिष्ठिर के सारे भाई पानी पीकर मर जाते हैं, ठीक है, एक लेक का पानी पी के. तो युधिष्ठिर बहुत चालाक होते हैं, बहुत क्लेवर होते हैं, ही इज वेरी इंटेलिजेंट एंड वाइज. ही आस्क्स कि यू नो हु इज इट इन द वाटर इन द लेक, मेरे भाइयों की मौत ऐसे तो हो नहीं सकती है, कौन है? देन देयर इज अ यक्ष विच कम्स अप, एंड बेसिकली ही वाज द धर्मराज ओनली, राइट? तो ही आस्क्स डिफरेंट धर्मा बेस्ड क्वेश्चंस. सो युधिष्ठिर्स कैरेक्टर कम्स अंडर डिओंटोलॉजिकल एथिक्स. ये पॉइंट याद रखना है आपको, ठीक है? वर्च्यू में देखोगे अर्जुन का एग्जाम्पल वर्च्यू के एथिक्स में आ जाएगा, ठीक है? ये पॉइंट याद रखना है. ही फोकसेस ऑन डेवलपिंग हिज वर्च्यूज, हिज गुड कैरेक्टर्स, हिज गुड ट्रेट्स. एंड कभी कभी ऐसा होता है कि कॉन्सिक्वेंशलिज्म, कि अपनी खुशी पर ज्यादा फोकस करना, तो यहाँ पर दुर्योधन का एग्जाम्पल ज्यादा आ सकता है, ठीक है? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड मेटा एथिक्स. मेटा एथिक्स इज द एनालिटिकल फिलोसफी वाला ब्रांच ऑफ एथिक्स. इट एक्सप्लोर्स द स्टेटस, इट एक्सप्लोर्स द फाउंडेशंस, स्कोप ऑफ मॉरल वैल्यूज, ठीक है? तो दैट इज मेटा एथिक्स, बेसिकली एनालिटिकल ब्रांच, कि वॉट एवर यू आर डूइंग एनालिटिकली यू आर एक्सप्लोरिंग व्हाट एग्जैक्टली इज मोरालिटी, ठीक है? उसको हम क्या बोलेंगे? मेटा एथिक्स. इट इज कंसर्न बेसिकली ना, मेटा एथिक्स, आई विल आल्सो राइट इट डाउन ओवर हियर. ये मेटा एथिक्स ना लैंग्वेज पे ज्यादा डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज यू आर स्पीकिंग. हियर यहाँ पर ड्यूटी, हैप्पीनेस एंड योर कैरेक्टर्स वर इन द स्पॉटलाइट. हियर योर लैंग्वेज, हाउ यू स्पीक, दैट विल बी इन द स्पॉटलाइट, ठीक है? एंड इट इज बेसिकली ये नॉर्मेटिव एथिक्स का ना एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, ठीक है? आप कैसे गुड और बैड को डिफाइन करते हो, वो मेटा एथिक्स में आता है. इन नॉर्मेटिव एथिक्स यू आर जस्ट टेलिंग दिस इज गुड एंड दिस इज बैड. इन मेटा एथिक्स यू आर एक्चुअली डिफाइनिंग व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड थ्रू योर वर्ड्स, ओके? तो जैसे कि क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जाम्पल अबॉर्शन, इज इट गुड और इज इट बैड? दैट विल बी इन मेटा एथिक्स, ठीक है? द व्हाई विल बी मेटा एथिक्स. एंड देन वी हैव अप्लाइड एथिक्स. अब ये अप्लाइड एथिक्स क्या होता है? Right now, what we are doing in normative and meta ethics, we are just defining what is good and what is bad, what is good and bad. ठीक है? How can we define good and bad? But in applied ethics, you are applying ethics in the real world problem. Real world problem में आप जब apply करते हो, theoretically is meta and normative, but when you are applying them, it becomes applied ethics. ठीक है? जब आप apply करने लगते हो, वो applied ethics हो जाता है. That means execution finally. Now, there are different areas where you can use ethics. For example, medical ethics हो जाता है. Nurses, doctors के केस में ये use होता ही होता है. There are many troubling questions sometimes in medical ethics कि should we go ahead with this euthanasia or not. Euthanasia का यहाँ पर बहुत important example हो जाएगा, ठीक है? और एग्जाम्पल्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे. बिजनेस एथिक्स आ जाता है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोचिंग इंडस्ट्रीज ही देख लें, तो बिजनेस एथिक्स आर यूज्ड ओवर देयर इफ यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर द गुड ऑफ द स्टूडेंट्स और जस्ट फॉर अर्निंग योर रेवेन्यू.
रिसर्च एथिक्स भी हो जाता है, व्हेन यू आर रिसर्चिंग, क्या आप प्लेजरिज्म कर रहे हो, प्लेजरिज्म का एग्जांपल हो जाता है इसके अंदर. Environmental ethics, if you are building a build if you are building a you can say industry or setting up a factory, तो how well you are gelling up with the environmental laws. लीगल एथिक्स हो जाता है, स्यू मोटो हो जाता है इसके अंदर, ठीक है. प्रो बोनो केसेस आप लड़ते हो, वो आपके लीगल एथिक्स में आ जाता है. टेक्नोलॉजी एथिक्स आ जाता है इसके अंदर, एआई का सबसे बड़ा रोल आ जाएगा. क्रिस्पर कैस 9 टेक्नोलॉजी का इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा. जीन एडिटिंग, टेक्नोलॉजी एथिक्स. आई हैव गिवन यू एग्जाम्पल्स ऑल्सो इन ऑल दीज एरियाज. आप इसको फर्दर मुझे नीचे सबके एग्जाम्पल्स दोगे. ईच एग्जाम्पल शुड बी गिवन बाय यू, because if you guys are not brainstorming, then what is the usage of studying ethics, right? Now coming on to the next important aspect, attitude and aptitude. ये टर्म्स आपने काफी सुने होंगे. एप्टीट्यूड पेपर सी सैट का आपका होता है ना. एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस एग्जाम. तो एटीट्यूड क्या होता है? how you feel about something. For example, there are many students who feel their attitude towards this exam is ki, it's the most prestigious position, we want to become an IAS so that we can live a very luxurious life, बहुत अच्छे से luxurious life जी सके हम, या फिर we should have all the facilities etc. That is a very shallow attitude towards this exam. अगर आप किसी भी चीज में मेहनत करोगे, लग्जरी तो आपके पास आएगी आएगी. हार्ड वर्क ब्रिंग्स लग्जरी. If you are putting that hard work in this exam or in any other field, luxury to ultimately aayegi. So that is a negative attitude towards this exam. Another attitude can be, I want to fix something on my own individual level in the society. I know I cannot change everything in the world, but on my individual level I want to contribute to this nation, to this society. That is a positive attitude towards this exam. So attitude is what perspective or feeling you have about something, it reflects in your behavior also. जिसका attitude है shallow, वो आप देखोगे बहुत कम समय के लिए motivated रहता है. His or her motivation comes down after every 2-3 weeks, and that is why those kind of students, they depend more on reels, right? तो यहाँ पर एटीट्यूड में, टू इनहेंस योर एटीट्यूड, यू शुड हैव अ ग्रोथ माइंडसेट, यू शुड हैव अ फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट, यू शुड हैव डिसिप्लिन, विच इज बोरिंग, बट यही हम डिसिप्लिन तो एसके में, सुपर कलाम में इंप्लीमेंट कर रहे हैं आपके अंदर, डेली टारगेट्स देकर आपको, राइट? यू शुड नो हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस, अपने ब्रीदिंग पैटर्न्स को रेगुलेट करना है. नोटिस दैट व्हेन यू आर एंग्री और anxious, your breathing pattern becomes erratic. That is why it is said, whenever you find yourself angry, observe yourself, sit down and just try to breathe normally, your anger will go away. And then we have aptitude. Aptitude क्या होता है? How you analyze something, that is your aptitude. आप कितना रीजनिंग के साथ, करेज के साथ, एम्पति के साथ, विजुअलाइजेशन के साथ चीजों को देखते हो, रैशनैलिटी अटैच करके देखते हो, दैट इज योर एप्टीट्यूड. हाउ एनालिटिकल यू आर, that is your aptitude. What is empathy? Empathy का मतलब क्या है? When you can put yourself into the shoes of other people, that is the meaning of empathy. For example, if a person is crying in front of you and if you're laughing at the way he's crying, you do not have empathy. But अगर कोई इंसान रो रहा है और आप उसको फील कर पा रहे हो उसके दर्द को, that is empathy. And accordingly you will show your understanding towards that person. And an IAS officer, a civil servant, should have empathy. Only then you will be able to solve problems in the society, right? So this is empathy. Now एक और टर्म आता है जो कि सिलेबस में भी आप देखोगे, विच इज नॉन पार्टिसनशिप. ठीक है, या पार्टिसनशिप भी आप उसको बोल सकते हो. आई जस्ट आइडेंटिफाई, यहां पर मैंने कहीं देखा था, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. देयर वॉज दिस वर्ड कॉल्ड पार्टिसनशिप, नॉन पार्टिसनशिप ओवर हियर. यही कहीं वर्ड था, आपको दिखे तो बताना, ठीक है? लेट मी नो इफ यू कैन सी दैट वर्ड. यस, नॉन पार्टिसनशिप, मैंने यहाँ हाईलाइट भी किया है. वॉट इज नॉन पार्टिसनशिप? इट मीन्स वेन यू आर न्यूट्रल. आप किसी एक पार्टी का फेवर नहीं कर रहे हो, लेफ्टिस्ट राइटिस्ट, ये आइडियोलॉजी आपकी नहीं है, आप न्यूट्रल हो. यू थिंक अबाउट द नेशन फर्स्ट, ठीक है? दैट इज नॉन पार्टिसनशिप. एंड अ सिविल सर्वेंट इज कंसिडर्ड एज न्यूट्रल. सिविल सर्वेंट को न्यूट्रली कहा जाता है. तो आपको नॉन पार्टिसनशिप इसलिए पढ़ाया जाता है. व्हेन यू आर नॉट इंक्लाइंड और बायस्ड टुवर्ड्स एनी पॉलिटिकल पार्टी, देन ओनली यू विल बी इन अ पोजीशन टू थिंक अबाउट द पब्लिक. यू आर एक्चुअली अ सिविल सर्वेंट, सोसाइटी के आप प्रतिनिधित्व कर रहे हो. And then we have a very cute word over here. Why am I saying it cute? Because ये word ना honesty से related है. Honesty हमेशा बहुत प्यारी चीज है जो एक इंसान के अंदर हो सकती है. If you're honest, a relationship will work.
If you're honest, then trust me, not just your relationship but your respect will also get enhanced in the society. So it has been taken from a Latin word. It means honesty. And where there is probity, there will be no corruption. क्योंकि आपके गवर्नेंस में प्रोबिटी का होना बहुत जरूरी है इफ थिंग्स हैव टू बी इम्प्रूव्ड इन द सोसाइटी. दैट इज प्रोबिटी, उसको हम प्रोबिटी बोलते हैं. So these were the key terms in ethics that I wanted all of you to learn today. नाउ आई हैव अ होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू. पहला तो होमवर्क ये है कि 100 कमेंट्स होंगे इस वीडियो के नीचे, तभी जाकर मैं आपके साथ अपने सारे हैंडमेड नोट्स शेयर करूंगी, वरना नहीं करने वाली. मैंने बहुत मेहनत किया है भाई इसके ऊपर. अगर आप ही पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो नोट्स भी शेयर नहीं होंगे. सो 100 कमेंट्स वी हैव टू रीच इन दिस वीडियो. सेकंड होमवर्क इज दैट यू हैव टू आंसर दिस फर्स्ट क्वेश्चन. Identify 5 ethical traits on which one can plot the performance of a civil servant. अब भले ही आप ये वाला पार्ट आंसर मत करना, बिकॉज इन द नेक्स्ट क्लास आई विल आंसर दिस, आई विल टीच यू दिस पर्टिकुलर पार्ट कि मैट्रिक्स क्या होता है सिविल सर्विसेज में. ठीक है, बट ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये आंसर करना है. और ये आंसर करके कहाँ भेजना है, हमारे पास एक हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी है. ठीक है, वहां पर आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो. सो 5 एथिकल ट्रेड्स एंड नॉट जस्ट टेलीग्राम कम्युनिटी. अगर आपने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर नहीं दिया तो नोट्स नहीं मिलेंगे. So you have to answer this question in the comment section in this video. Only then I will be giving you all the collective notes for your quick revision. Okay? This was all for today, everyone. Thank you so much for participating in the class. I am literally proud of each one of you. Make me prouder by commenting in the comment section.